So friends, after discussing about the glycosidic bond, now we will talk about the isomerism that is present in the carbohydrate. So what is the meaning of isomerism? Isomerism word को तोड़ना है, यहाँ पे क्या है आइसो और मेरिसम। तो आइसोमेरिज्म को तोड़ेंगे तो एक मिलेगा आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, और मेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो एग्जांपल ले रहे हैं, ए कोई मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, इट मीन्स इट इज़ अ हेक्सोज शुगर। अब ए मॉलिक्यूल से क्या करना है, बी सी डी ई एफ डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं these are having same molecular formula, that is C6H12 and O6, all are having same molecular formula, but they are different in the orientation or in the presentation. For example, let's suppose in the A molecule at the carbon 1 the position of OH group is on the right side, and at the carbon 2 OH group is present on the left side. Okay, but in the B molecule the position of OH group is on the left side in the carbon 1, while on the carbon 2 the location is on the right side, but they are having same molecular formula, that is C6H12 and O6. So we can say that these two are isomers of each other. So isomers are those molecules which are having same molecular formula, but they are different in their orientation or in the presentation. Now isomerism is of mainly two types. One is structural isomerism and second one is the stereoisomerism. Structural isomerism का example क्या है? This is the D-glucose, this is the D-glucose, and in the presence of the isomerase enzyme, the aldehyde group that is present in the D-glucose is converted into the ketone group. It means aldose sugar is converted into the ketose sugar, but the molecular formula is same, C6H12 and O6, both are having same molecular formula but functional group are different. One is having CHO group, aldehyde group, and other is having ketone group. So structural isomers are having same molecular formula, but they are different in the functional group. Now stereoisomers are of different types. One are the enantiomers that are also called as the D and L isomers, epimerism, enomerism, mutarotation, and the optical isomerism. Only these are the stereoisomers that are important for your PG entrance examination. So stereoisomers क्या होते हैं? Stereoisomers वो होते हैं जो they are having same molecular formula, but they are different in the spatial orientation. मतलब अगर स्पेस के अंदर उनको रखें उन मॉलिक्यूल्स को, तो उनके अंदर ओरिएंटेशन अगर देखेंगे उनकी डायरेक्शन मॉलिक्यूल्स की, हर एक मॉलिक्यूल की, तो वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो स्टीरियोआइसोमर्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो है एनांशियोमर, दूसरा एपीमर। ई से क्या है, दो नाम है, एक तो एनांशियोमर है और एक एपीमर है। ए से एक ही नाम है, एनोमरिज्म, फिर दूसरा म्यूटा रोटेशन, और फिर तीसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब एनांशियोमर्स और DL आइसोमर्स आर दोज स्टीरियोआइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब मिरर को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, आईना। मिरर को क्या बोलते हैं हिंदी में, आईना। और आईना और एनांशियोमर दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक जैसा है, आईना या एनांशियोमर। सो बोथ आर हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन। मीन्स एनांशियोमर जब भी मिरर इमेज की बात आए मतलब आईना, आईना मतलब एनांशियोमर्स। सो दोज स्टीरियोआइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो आईने के सामने अगर, मिरर के सामने अगर किसी मॉलिक्यूल को रख दें और उसकी जो सेम इमेज आएगी मिरर के ऊपर, दैट अगर दोनों सेम इमेज आती है, सो दीज आर दी एनांशियोमर्स। अब एनांशियोमर्स को D एंड L आइसोमर्स क्यों बोलते हैं? देखो
यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल क्या लिया है, डी ग्लूकोज का। यह है डी ग्लूकोज, 5th कार्बन एटम जो पेन अल्टीमेट कार्बन एटम होता है उस पर OH की पोजीशन क्या है, राइट साइड पे, इसलिए इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। अब क्या होना है कि ये मिरर इमेज बनानी है इसकी, तो OH जो है वो इधर चला जाएगा, ये आ गया इधर, ये वाला OH जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा, ये वाला OH जो है वो अगेन लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ये आ गया लेफ्ट साइड पे, ये वाला जो OH है जो राइट साइड पे है, मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे। और हमको पता है कि अगर राइट साइड पे OH ग्रुप है तो उसको बोलेंगे डी ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसको बोलेंगे एल ग्लूकोज। लेफ्ट साइड पर पेन अल्टीमेट कार्बन पर अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो वो एल शुगर है, और अगर राइट साइड पे है तो ऑब्वियसली एल का उल्टा क्या है, डी, तो डी शुगर है वो। तो एक स्टीरियो आइसोमर जो हमने पढ़ा वो कौन सा है, एनांशियोमर है। एनांशियोमर मीन्स सिर्फ आईने के सामने मॉलिक्यूल को रखना है, और आईने के जैसा सेम टू सेम मॉलिक्यूल अगर आईने पे दिखता है तो वो एनांशियोमर है एक दूसरे का। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की अगर बात करें तो बोथ आर एनांशियोमर ऑफ ईच अदर। अगर एग्जाम्पल MCQ आता है कि डी एंड एल ग्लूकोज आर which type of stereoisomer, which type of isomer, so they are enantiomer because they are mirror image of each other. अब एपीमेरिज्म मतलब एपी मीन्स एक कार्बन एटम पर H एंड OH की पोजीशन चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, ये है हमारे पास डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको बनाते आता ही है। जो सेकंड नंबर के कार्बन, जो ओनली थर्ड नंबर का कार्बन जो एटम है उस पे OH ग्रुप जो है वो क्या है, लेफ्ट साइड पे। बाकी सारे कार्बन पर OH ग्रुप जो है वो कहाँ पर है, राइट साइड पर। तो ये है डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज के अंदर क्या करना है, जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है उसकी जस्ट ओनली सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज करना है। तो उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब यहाँ पे राइट साइड पे था, सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप जो है राइट साइड पे था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे ओनली। तो सिर्फ एक कार्बन के अंदर हमको OH और H की पोजीशन चेंज करना है, सिर्फ एक कार्बन पर। बेसिक जो बेस मॉलिक्यूल कौन सा लिया हमने, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज के अंदर अगर सेकंड नंबर के कार्बन एटम पर H एंड OH की पोजीशन चेंज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल हमको मिलेगा दैट विल बी दी एपीमर एंड दैट इज कॉल्ड एज दी डी मेनोज। अगर सेकंड पोजीशन पर अगर OH एंड OH की पोजीशन चेंज करते हैं तो ग्लूकोज के अंदर सेकंड पोजीशन पर, सेकंड कार्बन की पोजीशन पर H एंड OH की लोकेशन चेंज करते हैं, सो वी विल गेट मेनोज। अब क्या है, एपीमर मीन्स सिर्फ एक कार्बन पर हमको H एंड OH की लोकेशन पोजीशन चेंज करनी है, तो वी विल गेट एपीमर्स ऑफ ईच अदर, सो वी विल गेट मेनोज। अगर सेकंड कार्बन पर चेंज करते हैं तो मेनोज, और अगर फोर्थ कार्बन पर करेंगे तो वी विल गेट गैलेक्टोज। सो वी कैन से दैट गैलेक्टोज एंड मेनोज आर epimers of the D-glucose. So if in the MCQ it is asked that galactose is which isomer of the glucose, so galactose is the epimer of the glucose. In the galactose epimerism is present. सो सेकंड कार्बन पर। अब नाउ क्वेश्चन इज हाउ विल यू रिमेंबर दैट। अब ये तो समझ में आ गया, बट कैसे याद करोगे कि सेकंड कार्बन, ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पर H एंड OH की पोजीशन चेंज करेंगे तो मेनोज मिलेगा। अब देखो डबल किसके अंदर, डबल एन किसके अंदर आ रहे हैं, जो एक साथ एन है वो है मेनोज के अंदर। डबल किसके अंदर है, डबल एन किसके अंदर है, मेनोज के अंदर। सो दीज आर 2n क्या है, एक साथ है। 2n मतलब कि हमको सेकंड नंबर के कार्बन, ग्लूकोज के सेकंड नंबर के कार्बन पर
H एंड OH की पोजीशन चेंज की होगी तब मेनोज मिलेगा, और गैलेक्टोज के अंदर तो कोई डबल है ही नहीं, तो ऑब्वियसली फोर्थ पोजीशन पर अगर चेंज करेंगे तो सेकंड और फोर्थ, ये याद रखना है कि सेकंड और फोर्थ पर चेंज करना है। अब जो थर्ड है उस पर कुछ नहीं करना है, थर्ड पे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये उल्टा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। थर्ड पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेकंड और फोर्थ पे करना है, और फिफ्थ वाला तो जो पेन अल्टीमेट कार्बन है इस पर भी कुछ नहीं करना है। तो सेकंड पे चेंज करेंगे तो सेकंड मेनोज के अंदर 2N है, 2N मतलब कि अगर सेकंड पे करेंगे तो मेनोज मिलेगी, और ऑब्वियसली अगर फोर्थ पे करेंगे तो क्या मिलेगी, गैलेक्टोज। सो गैलेक्टोज एंड मेनोज आर एपिमर्स ऑफ द ग्लूकोज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनोमेरिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So again we are taking very simple example of the D-glucose. So this is D-glucose, और ये D-glucose का इस टाइप का अगर प्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का, ये लाइन के फॉर्म में इस टाइप से, सो दिस इज कॉल्ड एज द फिशर प्रोजेक्शन. सो दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द D-glucose. अब इसके अंदर क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर, नाउ एज यू नो सॉल्यूशन के अंदर क्या बनना है, हेमी एसिटल ग्रुप. सॉल्यूशन के अंदर क्या बनेगी, रिंग. तो रिंग के लिए जो पेन अल्टीमेट कार्बन है उस पे जो OH ग्रुप है और जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट इन दी एल्डिहाइड ग्रुप, ये आपस में मिलके हेमी एसिटल ग्रुप बनाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, और ये बन गई रिंग. और रिंग को बोलते हैं, अब रिंग के अंदर क्या होगा, कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे और कुछ ऊपर की तरफ. सो इस टाइप से रिंग, और रिंग के अंदर हम लोग क्या, कुछ बिलो द प्लेन, रिंग का जो प्लेन है, रिंग का जो प्लेन है उससे कुछ तो नीचे कुछ मॉलिक्यूल्स और कुछ एटम्स होंगे और कुछ ऊपर होंगे. इस टाइप से अगर प्रेजेंट करते हैं किसी स्ट्रक्चर को, किसी कंपाउंड को, सो दिस इज कॉल्ड एज द हेवॉर्थ प्रोजेक्शन, हेवॉर्थ प्रोजेक्शन. तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था कि दिस इज कॉल्ड एज द साइक्लाइजेशन प्रोसेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज द हेमी एसिटल ग्रुप. ये कौन सा ग्रुप है, हेमी एसिटल ग्रुप. अब हेमी एसिटल ग्रुप के अंदर ये जो कितने मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पायरेनोज, बिकॉज 6 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड एज द पायरेनोज. सो इट्स नेम विल बी, अब इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है दैट इज द एनोमेरिक कार्बन, और एनोमेरिक कार्बन पर अगर OH ग्रुप बिलो द प्लेन होता है दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा, और अगर अबव द प्लेन होगा सो दिस विल बी कॉल्ड एज द बीटा. सो अगर इसका नाम दें तो क्या देंगे, ये क्या है, बिलो द प्लेन एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप बिलो द प्लेन है, सो दिस विल बी हैविंग अल्फा नेम. और ये क्या है, किससे बनाई ये वाली रिंग, हमने बनाई D-ग्लूकोज से, तो D तो ऑब्वियसली हो गई. और ये क्या है, किससे बनी, D-ग्लूकोज से, तो D-ग्लूको भी होगा. और ये क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग, दैट इज व्हाई इट विल हैव पायरेनोज नेम इन इट्स सफिक्स, सो इट इज हैविंग अल्फा D-ग्लूको पायरेनोज. अब यहाँ पर ये वाली जो रिंग है इसके अंदर क्या है, बिलो द प्लेन OH ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन है इन द एनोमेरिक कार्बन एटम, बट इफ in some other solution this OH group can be present above the plane, as you can see here. So now all things are same, only the position of OH is changed at the anomeric position in this molecule. So this is now beta D-glucopyranose. So alpha D-glucopyranose and beta D-glucopyranose are anomers of each other. Why they are anomers? Because only at the anomeric position the OH group position is changed. At the alpha position the OH group is below the plane, while in the beta position OH group is above the plane. आलसी लोग हमेशा नीचे रहते हैं, बट बेटा जो है वो क्या है, ऊपर है. सो अगेन दिस इज D-ग्लूकोज, और D-ग्लूकोज से साइक्लाइजेशन होके ये बना हेमी एसिटल ग्रुप, एंड नाउ दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग. सो दिस इज द हेमी एसिटल ग्रुप एंड दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग. बट इफ वी टॉक अबाउट द फ्रक्टोज की अगर बात करेंगे तो फ्रक्टोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, वो इस पोजीशन पर है.
जबकि एल्डिहाइड ग्रुप जो था वो फर्स्ट पोजीशन पर था, बट कीटोन ग्रुप जो है वो यहाँ पर है सेकंड पोजीशन पर, फॉर एग्जांपल सेकंड कार्बन पे है। और हम जानते हैं कि पेन अल्टीमेट कार्बन ही ऐसा कार्बन है जो जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हेमी एसिटल ग्रुप फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी? 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड दिस विल बी दी फिफ्थ वन। सो फ्रक्टोज के अंदर जो रिंग बनेगी वो बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग। सो दिस विल बी कॉल्ड एज दी fructofuranose, D-fructofuranose, and this group that is formed is called as the hemiketal bond, while here in the aldehyde sugar this was the hemiacetal, here the hemiketal because it is formed from the ketone, as in the aldehyde sugars this group is formed from the aldehyde, that is why its name is hemiacetal group or hemiacetal bond. So in the glucose 6 membered ring is formed, while in the fructose 5 membered ring is formed. So my dear friends, till now we have discussed enantiomer मतलब आईना रखा सामने, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर मतलब कोई भी आईने से लिंक करना है, मिरर इमेज मतलब कोई भी मिरर इमेज के मॉलिक्यूल्स हैं, सो दे आर द एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द डी एंड एल आइसोमर्स। एपीमर्स मतलब सिर्फ एक कार्बन पर अगर किसी फंक्शनल ग्रुप या एटम की पोजीशन चेंज करते हैं, सो दे विल गिव एपीमर्स। एनोमर्स मतलब कि हमको साइक्लाइजेशन करना है। अब ये अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं म्यूटर रोटेशन। अब म्यूटर रोटेशन वेरी सिंपल, एनोमर्स अगर समझ में आ गया एनोमरिज्म तो म्यूटर रोटेशन बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या करना है कि सिंपल क्या लेना है, हमारा एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल डी ग्लूकोज। अब पता है आपको कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होने वाला है, कुछ ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो लीनियर फैशन में जो ग्लूकोज अरेंज है ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर रिंग पैटर्न में, और कुछ बनाएंगे अल्फ़ा एनोमर्स और कुछ बनाएंगे बीटा एनोमर्स। सो सॉल्यूशन के अंदर क्या किया हमने, ये डाला लीनियर और ओनली जस्ट डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, अल्फ़ा एनोमर और बीटा एनोमर के अंदर। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट of the linear D glucose is now converted into the alpha or beta enomer, and now these alpha and beta enomers rotates the plane of polarized light at different directions, at different angles। और वो एंगल वगैरह हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये बेसिक समझना ज़रूरी है कि म्यूटा रोटेशन है क्या। तो लीनियर डी ग्लूकोज डाला सॉल्यूशन के अंदर, लीनियर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा एनोमर के अंदर। बट एट इक्विलिब्रियम जब अब ये सारे एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, अल्फ़ा बीटा के अंदर, बीटा अल्फ़ा के अंदर, फिर लीनियर के अंदर, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा बीटा एनोमर का। बीटा एनोमर मतलब बीटा एनोमर इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म इन द नेचर। सो मैक्सिमम अमाउंट, अब ग्लूकोज डी ग्लूकोज जो लीनियर डाला है वो तो बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा के अंदर, और बहुत कम मिलेगा हमको, मतलब बीटा सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर अल्फ़ा, और फिर सबसे कम मिलेगा ओनली डी ग्लूकोज, मतलब लीनियर वाला तो बहुत ही कम मिलेगा क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर है। और सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर्टी होती है ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट्स की कि वो क्या बना लेते हैं, रिंग पैटर्न। अब कुछ रिंग्स अल्फ़ा की होती है, कुछ बीटा एनोमर्स होते हैं। सो इफ इन द MCQs इट इज़ आस्क्ड दैट एट द इक्विलिब्रियम इन द म्यूटा रोटेशन विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, सबसे ज़्यादा अमाउंट आपको किसका मिलेगा, तो वो मिलेगा किसका, बीटा एनोमर का। ये आप याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए फिर लेते हैं एग्जांपल डी ग्लूकोज का। डी ग्लूकोज के अंदर जो पेन अल्टीमेट कार्बन है उस पर OH ग्रुप की पोजीशन राइट साइड पे है, सो इट इज़ दी डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज जो होते हैं जहाँ पर OH ग्रुप पेन अल्टीमेट कार्बन पर राइट साइड पे होता है, दे रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज।
और क्लॉकवाइज के लिए हम लोग स्मॉल डी एंड स्मॉल डी साइन यूज़ करो या फिर प्लस साइन यूज़ करो, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या डी और प्लस साइन यूज़ करते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज करेंगे लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट साइड पर OH ग्रुप है एट द पेनल्टीमेट कार्बन। सो दिस इज नाउ L ग्लूकोज। L ग्लूकोज विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग स्मॉल l और नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। अब अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी मिक्सचर के अंदर D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन द सेम अमाउंट, तो सेम अमाउंट के अंदर अगर होंगे किसी मिक्सचर के अंदर, तो क्या होगा कि जो D ग्लूकोज है वो राइट साइड पे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा और जो L ग्लूकोज है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये दोनों, ये कर रहा है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इस डायरेक्शन में मूव, कौन, D ग्लूकोज, और L ग्लूकोज कर रहा है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड नाउ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट विल मूव स्ट्रेट। सो नाउ in this case we will not get any optical activity. Optical activity मतलब कि neither it will rotate clockwise nor it will rotate the anti-clockwise the polarized light. और लाइट से ही, लाइट के रोटेशन से ही मिलती है हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि लाइट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। जहाँ भी लाइट रहने वाला है वहाँ पे क्या आएगी टर्म, ऑप्टिक्स। अब लाइट मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। लाइट स्ट्रेट आ रहा था और स्ट्रेट ही चला गया। इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज नॉट शोइंग एनी, दिस कॉम्प्लेक्स और दिस कंपाउंड, दिस मिक्सचर इज नॉट शोइंग एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी. So such mixtures, such compounds which do not show any optical activity are called as the racemic compound or racemic mixture. Racemic mixture is having D and L forms, D and L forms in the same amount. So now here we come across a very important term, that is racemization. Racemization के अंदर क्या करते हैं कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, let's suppose this was optically active molecule, this was also optically active molecule. तो optically active molecules को क्या करते हैं, नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं by forming equal और सेम मिक्सचर ऑफ बोथ D एंड L फॉर्म्स. अब D एंड L फॉर्म्स के अंदर, किसी मिक्सचर के अंदर दोनों फॉर्म्स इक्वल अमाउंट में होंगे. सो दीज मॉलिक्यूल्स दैट वर, जो क्या थे पहले जब साथ में नहीं थे तब क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव, बट दोनों को साथ में इक्वल अमाउंट मिला दिया, तो नाउ दे हैव बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो दिस प्रोसेस, अगर ऐसा करने से नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकली नॉन एक्टिव बन जाते हैं. सो दिस process is called as the racemization. So friends, this is all about the basics of the carbohydrate.